Namaste to all. Again, I am here with the question paper of class 9 of mid-term half-yearly examination 2023 and 24 of DAV Public Schools, Bihar Zone. 20 questions given, MCQ types, each of 1 marks in section A, and in section B, total 5 short answer question given, each of 2 marks. Section C, 6 question given, each of 3 marks, and section D, 4 long type questions given, each of 5 marks, whereas section E has 3 case study questions, each of 4 marks. Question first, which of the following is a rational number? Option B, 0/4 is a rational number, and other all are irrational, and 4/0 is also not rational. Question second, every point on a number line represents a unique real number. The right answer is A. Question third, when simplified a to the power -1 plus b to the power -1 whole power -1, if we solve it, it will be ab by a plus b, because without taking the power -1, if we solve it, b plus a by ab, and for -1 if we take reciprocal, it will be ab by a plus b. So option B of question number 3. Question 4, x is a positive number, x square equal to 3, then x cube. If we find the value of x, it will be the x equal to √3, a square becomes a square root in RHS, and after that x cube means √3 cube equal to 3√3. So right answer is B of question number 4. Now next questions. Question number 5, which of the following is a polynomial? In option A, B, C, all are not polynomials because the power of variables are non-negative integers. So right option is D in question number 5. Question 6, degree of 0 polynomial is not defined because the degree of constant polynomial is 0, but the 0 polynomial and their degree is not defined. Question 7, the product of any two irrational number can be rational and also irrational. So option D, sometime rational and sometime irrational. In question number 8, x plus 1 by x equal to 2. First we should find out the value of x square plus 1 by x square by aspiring on both sides. Then x square plus 1 by x square equal to value 2. Now we will write the factor form of x cube plus 1 by x cube. It will be just like a cube plus b cube, a plus b into a square plus b square minus ab. A plus b means x plus 1 by x value given 2, and x square plus 1 by x square just we have find 2, and x into 1 by x by cancellation 1. 2 minus 1 1, 1 into 2 2. So the right option is D. Question number 9, point 0 minus 6 lie. 0 minus 6 always lie on the y axis because it is in the form of 0y. Now question number 10, if 104 and 96 expanded, then 104 can be written 100 plus 4, whereas 96 can be written 100 minus 4. So right option is A of 10. Question number 11, if two non-zero angles are complement to each other, then each angle is. So we can find that let one angle is x, then its complement is 90 minus x, and if we find, then always it will be acute angle, means less than 90. So right option is A, an acute angle. Question 12, AOC given, COD given, and BOD, all 3 angles given, and AOB is given a straight line. So sum of all 3 angles should be equal to 180 degree. By solution we can find the value of x 30 degree. Now question asks AOC. AOC is 3x minus 10. By putting the value of x, 3 into 30 minus 10, it will be 80 degree. So the right option is 80 degree, option C of question number 12. Question number 13,
An angle is 1/5 of its supplement. The measure of angle is, if we take the angle x, then their supplement is 180 minus x, and the angle is 1/5 of its supplement. So 1/5 into 180 minus x. By simplification, we can get the value of x 30 degrees. So right option is B, 30 degree. Question 14, given in the given figure, AOB is a straight line and AOC and BOD given 85 degree, and we should have find the COD. Again, all the sum of three angles on a straight line is 180, and so we should subtract 85 from the 180 degree, it will be 95. So right option is C of question number 14, 95 degree. Question 15, if 1, 2 is a solution of y equal to ax plus 4, then a. First we should put the value of x and y, and we can find out the value of a minus 2. So the right option is A of question number 15. Question 16, the point of intersection of the coordinate axis is, it is always called the origin. So right option is D of question number 16. Question 17, a point whose abscissa is minus 2 and coordinate is 5 lies in which quadrant? Means the coordinate is minus 2, 5, minus plus. It will always lie in second quadrant, because on x-axis it will negative and y-axis it will be positive. Question 18, a point having abscissa 0 lies on. 0 abscissa is 0, it means it is in the form of 0y, so it will lie on always on y-axis. So right option is C of question number 18. Now question number 19, assertion region. First assertion is two angles are called adjacent if they have common vertex, they have a common arm, and non-common arm lie on two different sides, means opposite side of common arm. So this statement, this assertion is right. But region, the adjacent angles have common interior point. It has a common point but not the common interior point. So the assertion is true but region is false. So option C of question number 19. Question 20, sides opposite to equal angles of a triangle are equal, and region angles opposite to equal sides of a triangle are not equal. So first assertion is right, but region is not right. So option C, assertion is true but region is false. In this type, so you can do the question number question up to 20 of objective question. Now we want to discuss the question number 21. Insert 4 rational number between 3/5 and 4/5. Different methods for finding the rational numbers. Here we have used one method. First, required rational number is 4. So we should multiply more than 1 means 5 in numerator as well as denominator. By multiplying we can get the 15/25 and 20/25. 4 rational number between 3/5 and 4/5 are after 15/25, 16/25, 17/25 and 18/25 and 19/25. So these are 4 rational numbers. Question number 20, to plot root 3 on the number line. First we should take a number line. We should take 1 unit on the line, and again we should draw the perpendicular line, and again 1 unit, just like AB. Now we will join OB, that is equal to root 2. Again at point B we should draw the perpendicular as BC, and again I should take the 1 unit. फिर हमें OC को ज्वाइन करना है. OC ज्वाइन करने के बाद जो कि OC हो जाएगा रूट 3, इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं. अब OC को रेडियस लेते हुए एक अर्क ड्रॉ करेंगे जो कि नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर D, वह रूट 3 को शो करेगा. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 बना सकते हैं. क्वेश्चन 23, एक्सपेंड. इट इज़ द a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. यह a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, -2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx. यही इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का.
क्वेश्चन 24, इफ a plus b plus c equal to 0 given, then find the value of a square by bc, b square by ac plus c square by ab। इसे सबसे पहले हमें बी सी ए सी ए बी का एलसीएम ले लेना है, जो कि ए बी सी होगा। बी सी से डिवाइड करेंगे तो ए होगा, ए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू, सिमिलरली प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब हमें एक आइडेंटिटी पढ़ा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। इसलिए इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc लिखेंगे और नीचे में डिनोमिनेटर में ए बी सी ऑलरेडी है, कैंसिल होकर के ये 3 बचेगा, जो कि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी बी द 3 पॉइंट्स इन ए लाइन सच दैट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ये ए सी पर एक पॉइंट है बी, जो कि ए सी लाइन पर ही है, तो इसे हम लोग बाय फोर्थ इक्विलेट्स एक्सियोम्स के द्वारा इसमें है कि ये कोइंसाइड करता है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी या ए सी माइनस ए बी भी करते हैं तो बी सी। मेन इसमें पॉइंट है फोर्थ इक्विलेट्स एक्सियोम्स को ये फॉलो कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कर सकते हैं। 26, एक्सप्रेस 2.01515 इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। सबसे पहले हमें इसे लेट कर लेना है, x इक्वल टू दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 10x इक्वल टू 20.1515। फिर उसमें से 1000 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया तो ये 1000x इक्वल टू 2015.1515 हो गया। अब हमें इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 990x इक्वल टू 1995 बचेगा। x का वैल्यू 133/66 निकल जाएगा, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, a बाई बी के फॉर्म में, जहाँ a और b इंटीजर्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें कि ए डी और बी सी इक्वल है और डी ए बी और सी बी ए इक्वल है, तो हमें ये 3 क्वेश्चंस को प्रूव करना है। सबसे पहले हिडन का फिगर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी को कन्वर्जेंट है। तो हमने ए बी डी और बी ए सी ट्रायंगल ले लिया, जिसमें कि ए डी इक्वल टू बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन हो जाएगा और डी ए बी और सी बी ए जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों एंगल इक्वल हैं। इस तरह से दोनों ट्रायंगल को हम कन्वर्जेंट कर सकते हैं बाय SAS रूल से, 2 साइड और एक एंगल बीच का इक्वल हो रहा है, इंक्लूडेड एंगल। सेकंड BD इक्वल टू AC हो जाएगा CP से, क्योंकि फर्स्ट में हमने दोनों ट्रायंगल को कन्वर्जेंट किया है। ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन C, ABD और BAC भी इक्वल हो जाएगा CP से, जिसमें कि हम ऑलरेडी 1 में प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। इसको बनाने का 2 मेथड्स हो सकता है। एक मेथड है कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टराइज करके निकाला है, आप इसको एक कांस्टेंट टर्म का फैक्टर निकाल के जीरोज निकाल करके भी निकाल सकते हैं। हमने डायरेक्ट यहाँ स्प्लिट कर लिया है 3x² को -5x² प्लस 2x² के फॉर्म में, जबकि -9x को -10x प्लस x के फॉर्म में स्प्लिट किया है। अब हमें फर्स्ट कॉमन ले रहे हैं, x³ -5x² में x² कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद ये x - 5 बचेगा। अब सभी टर्म में x - 5 लेफ्ट होना चाहिए। 2x को कॉमन लेने के बाद x - 5 बच रहा है और यहाँ पर +1 कॉमन लेने के बाद x - 5 बच रहा है। x - 5 तीनों से कॉमन लिया गया, ये लेफ्ट बचा x² प्लस 2x प्लस 1, ये x - 5 और इसको x² प्लस 2x प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको फिर अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में है, जिसे कि a प्लस b यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। x - 5 ऑलरेडी वी हैव टेकन कॉमन, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यह इसका फैक्टराइज फॉर्म होगा। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इन द फॉलोइंग फिगर L पैरेलल L1 पैरेलल L2 गिवन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। इसमें हमें y का वैल्यू निकालना है। अगर L पैरेलल L1 पैरेलल L2 दिया है तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, और उसके बाद हम लोग
वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से कर सकते हैं, और वाई की जगह पर उसका वैल्यू 3x पुट करेंगे तो x प्लस 3x इक्वल टू 180। इस तरह से x का वैल्यू 45 होगा, और फिर लास्ट में y का वैल्यू x में डाल देने के बाद ये y का वैल्यू 3 इंटू 45 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, if x plus 1 is a factor of 2x square plus kx plus 5 then find the value of k। इस क्वेश्चन में हमें x प्लस 1 फैक्टर दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल का, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो यह x इक्वल टू -1 इसका जीरोज हो जाएगा। अब हमें p माइनस 1 जीरोज लेकर के चलते हैं जिसका कि वैल्यू 0 होगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 का वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद 2 माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा। इस तरह से k का वैल्यू हम लोग 7 निकाल सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 मार्क्स का है। क्वेश्चन 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ t इफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 2 y इक्वल टू t गिवन। 31 क्वेश्चन में केवल हमें ये इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करना है, जिससे t का वैल्यू 9 + 4 13 ला सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 32, ABC इज right angle triangle at C, a line through midpoint of M, hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D so that। इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले ये इस ढंग का फिगर बनाएंगे। उसके बाद गिवन M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DM पैरेलल टू CB, ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो D भी AC का मिड पॉइंट होगा, जो कि कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग यूज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन सेकंड में हमें प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो अगर ADM और ACB एंगल लेते हैं, दोनों इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और दोनों एक 90 है एंगल C, तो ADM भी 90 डिग्री हो जाएगा। इससे MD परपेंडिकुलर AC पर हो जाएगा। अब हमें लास्ट में प्रूव करना है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हमें CM को ज्वाइन कर लिया। अब हमें दो ट्रायंगल बन गए ADM और CDM। ये दोनों ट्रायंगल को हमें कन्वर्जेंट करना है। AD इक्वल टू CD हो जाएगा, और ADM इक्वल टू CDM जो कि 90 डिग्री हो गया, और DM इक्वल टू DM कॉमन दोनों में हो गया। इससे ट्रायंगल ADM और CDM कन्वर्जेंट हो जाएगा SAS कन्वर्जेंसी से। उसके बाद हम लोग AM इक्वल टू CM लिख सकते हैं CP से। अब हमें M जो है AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AM प्लस BM इक्वल टू AB लिख सकते हैं क्योंकि यह मिड पॉइंट है, और BM की जगह AM भी लिख सकते हैं क्योंकि AM और BM ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्वल है मिड पॉइंट होने के कारण। AM इक्वल टू AM प्लस AM 2AM, AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा, और AM इक्वल टू CM ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पर CP से प्रूव कर चुके हैं, इसलिए AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चंस में दिया हुआ है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 25 रेशियो 17 रेशियो एंड 12 एंड इट इज पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज 540 मीटर, फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले हमें लेट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 25x 17x एंड 12x, ये तीनों को ऐड करके 540 के इक्वल करेंगे, क्योंकि यह 540 पेरीमीटर दिया हुआ ट्रायंगल तीनों साइड्स का सम। इससे x का वैल्यू 10 निकालेंगे, और 10 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 250, 170 एंड 120 आ जाएगा, जो कि यह साइड्स हो गया ट्रायंगल का। अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर बाई 2 यानी 270 हो गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं हेरोन फार्मूला से, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S की जगह 270, S माइनस A 270 माइनस 250 जो कि माइनस होकर 20 होगा, 270 माइनस 170 100 होगा, और 270 माइनस 120 करेंगे तो 150 होगा। इसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपेंड करते हैं और पेयर बनाने के बाद ये हमें 9000 मीटर स्क्वायर का आंसर आता है, और आपको भी आ सकता है, ये निकाल के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34
34 में रेशनलाइजेशन दिया है। सबसे पहले √11 माइनस √7 को रेशनलाइज करना है बाय √11 प्लस √7 को। तो इसको हम लोग रेशनलाइज करने के लिए √11 प्लस √7 के बदले √11 माइनस √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे। ये ऊपर में हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जबकि नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ और माइनस √11 का स्क्वायर 11 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है। 11 माइनस 7 4 हो गया। ऊपर में सॉल्व किया तो √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7 और -2 √11 इंटू √7 मीन्स √77। 11 प्लस 7 18 हुआ और 18 और 2 में 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कॉमन लिया भी जा सकता है और डिनोमिनेटर में जो 4 है उससे कैंसिल होगा। तो लास्टली ये बचेगा 9 माइनस √77/2। और हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में a माइनस बी √77 का वैल्यू निकालना है। तो a के प्लेस पर 9/2 है, वही वैल्यू हो जाएगा, जबकि माइनस बी √77 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस √77/2। माइनस माइनस कैंसिल, √77 कैंसिल, एट लास्ट लेफ्ट b इक्वल टू 1/2। इस तरह से a का वैल्यू 9/2 बचेगा, जबकि b का वैल्यू 1/2 बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। एक फिगर यहाँ दिया हुआ है जिसमें कि दिया हुआ है RS PQ पैरेलल टू RS और इसमें एक एंगल P और एंगल R भी दिया हुआ है। एक हमें लाइन ड्रॉ करना है जो कि हमने TU ड्रॉ किया। यह दोनों लाइन की, क्योंकि एक का हम लोग पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऑलरेडी थर्ड का दिया हुआ है, तो वो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी TU पैरेलल टू QP पैरेलल टू RS। अब हमें एक एंगल 1 हमने लिया है फिगर में, 1 और 130 को प्लस करने के बाद 180 होगा को इंटीरियर एंगल से। इससे एंगल 1 हम लोग निकाल सकते हैं 50 डिग्री, 180 माइनस 130। अब हमें 1 आ गया है तो POR प्लस एंगल 1 इक्वल टू 110, दैट इज वी हैव ऑलरेडी टेकन फ्रॉम बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल QPO इक्वल टू POU, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। फिर POR हमें निकालना है, जबकि एंगल 1 ऑलरेडी हम 50 निकाल चुके हैं। 50 को RHS में भेजेंगे, 110 माइनस 50, POR इक्वल टू 100, 110 माइनस 50 इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग तेज़ी से थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। अगर इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप अलग से बता सकते हो और उसको मैं डिटेल से सॉल्व करके और समझा सकता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 गिवन केस स्टडी क्वेश्चन। हियर आर द ग्राफ्स गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ। यहाँ पर हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेट्स एंड स्कूल का कोऑर्डिनेट, लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेट और पुलिस स्टेशन का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट लिखना है स्कूल का। स्कूल यहाँ दिख रहा है, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3, इसलिए यह 2 3 हो गया कोऑर्डिनेट स्कूल का। सेकंड क्वेश्चन है हमें पुलिस स्टेशन का कोऑर्डिनेट लिखना है। पुलिस स्टेशन का जो लोकेशन है वो 2 दिखा रहा है x एक्सिस पर और -1 दिखा रहा है y एक्सिस पर, इसलिए इसका -2 और -1 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन थर्ड हमें पूछ रहा है कि पुलिस स्टेशन और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ओरिजिन से स्कूल का डिस्टेंस 3 यूनिट, जबकि ओरिजिन से पुलिस स्टेशन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट, इन 3 + 1 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ये लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो लाइब्रेरी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 6 x एक्सिस शो कर रहा है, जबकि 2 y एक्सिस शो कर रहा है, इसलिए 6 और 2 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, एक ओवर ब्रिज का फिगर दिया हुआ जिसमें एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है। ट्रायंगुलर शेप में 122, 120 और 22 मीटर का साइड्स दिया गया है। सबसे पहले इसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए में सेमी पेरीमीटर निकाला है, तीनों साइड्स का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, जो 132 मीटर आया है। सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बॉल।
हमें हेरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, जहाँ पर S 132 है, A 122 है, B 120 है और C 22 है। ये हमें सॉल्व करने के बाद 130 इंटू 10, इसको आप आसानी से जिस तरह से भी है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पेयर बना लिया, 132 को 12 इंटू 11 लिखा है, क्योंकि 12 ऑलरेडी है ही, और 110 को 11 इंटू 10 लिख लिया। ऐसे लिखने से हमें पेयर बनाने में आसानी हुआ। एक 12 का पेयर बना, एक 11 का पेयर बना और एक 10 का पेयर बना। तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद 1320 हो गया मीटर स्क्वायर। यह एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। थर्ड क्वेश्चन में हाउ मच द मनी हैज टू पे, कंपनी जो है कितना मनी पे किया, तो इसके लिए है कि उसे एक साल का टोटल अमाउंट 5000 1 मीटर स्क्वायर का पे करना है। तो एक साल का 1320 मीटर का अगर वो निकालता है तो 1320 इंटू 5000 एक साल का उसका रेंट होगा। और इसे हम एक महीने में निकालते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे, ये एक महीने का हो जाएगा। अगर 3 महीने का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और यह 16,50,000 आता है, जो कि 3 महीने का रेंट होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 38 भी है केस स्टडी क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसे इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में 2 फिगर्स बना हुआ है, जो कि इधर ABC है और इधर PRQ है। इसमें मेजरमेंट भी सेम दिया है, हाइपोटेनस 20 दिया है, जबकि परपेंडिकुलर 15 दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच क्राइटेरिया कैन बी यूज टू शो द 2 ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। ये परपेंडिकुलर एक साइड दिया, हाइपोटेनस दूसरा साइड दिया, एक एंगल B और एंगल R 90 दिया है। तो हाइपोटेनस इक्वल दे रहा है, एक एंगल राइट दे रहा है और एक साइड भी दे रहा है, इसलिए ये दोनों को RHS से कन्ग्रुएंट किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन इज A ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 38। सेकेंड क्वेश्चन द बेस ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर, बेस यहाँ BC है और यहाँ QR है, दोनों में सेम बेस होगा क्योंकि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर सेम है। यहाँ बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 हो गया, जबकि 15 का स्क्वायर 225, माइनस करके 175 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5√7 आएगा, जो कि ऑप्शन A है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन A होगा। क्वेश्चन थर्ड विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सही है। तो हमें 2 ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना है, तो यहाँ ABC कन्ग्रुएंट टू PRQ इसमें लिख सकते हैं। ये ABC और PRQ कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये RHS से ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि कौन रूल से कन्ग्रुएंट होगा। क्वेश्चन 4 विच इज़ नॉट ए रूल ऑफ कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसमें से ट्रायंगल के कन्ग्रुएंसी का रूल कौन नहीं है। तो SSS कन्ग्रुएंसी का रूल है, ऑप्शन B SAS भी कन्ग्रुएंसी का रूल है, ऑप्शन C AAS भी कन्ग्रुएंसी का रूल है, जबकि ऑप्शन 4 SSA कोई भी कन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन D हुआ। इस तरह से हमने सारा क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर दिया है। इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कितना आपका सही है, और आगे के एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या डिटेल से समझना है तो फिर अलग से आप बता सकते हैं, और मैं उसका फिर से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।